Good morning, viewers. I myself, A.K. Pathak, and mobile number. Today, I will tell you about irrational number. अभी तक आपने रेशनल नंबर पढ़ा जो प्रीवियस क्लासेस में था, लेकिन अभी आपको एक न्यू टॉपिक मिलेगा. इस नेम इज irrational number. What is irrational number? Firstly, we have to describe about irrational number. The number which cannot be represented in P by Q form. I mean, the number cannot be represented in rational number is known as irrational number. In हिंदी जो नंबर रेशनल नंबर में नहीं लिखे जा सकते ऐसे नंबर irrational number होते हैं. And you know very well that rational number are two types. First, terminating, and second is repeating decimals. According to this, we can define irrational number. Non-terminating and non-repeating decimals are irrational. It means the number which cannot be represented in terminating decimals or repeating decimal number is known as irrational numbers. For example, 0.01, 001, 0001 and so on, and 0.2, 0.02, 002, 0002 and so on. इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं यहाँ पे आप डेसिमल के बाद 1 जो है 0 और 1 है, फिर यहाँ 0 और 1 होता तो ये रिपीटिंग होता, बट यहाँ 0 0 1 हो गया, फिर यहाँ 0 0 0 1 हो गया. मतलब 1 का जो प्लेस वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रहा है. द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज नॉट रिपीटिंग कंटिन्यूसली, सो इट इज नॉट ए रेशनल नंबर. दैट्स व्हाई इट विल बी एन irrational number. Similarly, 0.02, 002 and 0002 and so on. Thus, such type of numbers which cannot be represented in terminating decimals and repeating decimals are known as irrational number. Second, if m is a positive integer, it is positive. If m is a positive integer which is not a perfect square, then under root m is an irrational number. It means अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट m की जो वैल्यू होगी वो irrational नंबर होगी. फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 10 एंड अंडर रूट 11. इस एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 and 11 all are not perfect square numbers. So the under root value of such numbers will also an irrational number. And third is if m is a positive integer and m is not a perfect cube, such type of numbers, I mean the cube root of such type numbers is irrational. For example, cube root 2, cube root 3, cube root 4, cube root 5, cube root 6, cube root 7, cube root 9 and so on. हम देख रहे हैं कि ऐसे एग्जाम्पल्स में 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9 are not perfect square. So such type of numbers, the cube value of such type numbers, those who are not perfect cube are also irrational. And one thing is very important, pi. I have told you already in rational number that pi is not a rational number because its approx value is 22/7. Its
Accurate value is not 22/7. So it is not a rational number. That's why pi is also an irrational number. Okay? Pi is also an irrational number. अभी आपने irrational number के बारे में समझ लिया होगा. Now there are some properties belonging to irrational numbers. These properties are following, and I will describe one by one from 1 to 6. First, irrational numbers are commutative, associative, and distributive in case of addition and multiplication. It means in Hindi, जब हम टू इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही दो केस में होगा, सब्ट्रैक्शन में एंड डिवीजन में नहीं होगा. केवल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में जो इरेशनल नंबर्स हैं वो कम्यूटेटिव रूल्स को फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव रूल्स को फॉलो करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटिव रूल्स को फॉलो करते हैं. अब आप कहेंगे कि सर ये कम्यूटेटिव रूल्स क्या है, एसोसिएटिव रूल्स क्या है और डिस्ट्रीब्यूटिव रूल्स क्या है. तो हमारे पास थोड़ा समय की कमी है. अगले वीडियो में कल हम आपको इसको बता देंगे कि व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स. Once again, in case of addition and multiplication, irrational numbers are commutative, associative, and distributive. Second is sum of two irrational numbers need not be an irrational. इसका मतलब हो गया कि अगर हम दो irrational नंबर को ऐड करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो irrational ही आएगा. इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है. ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है. नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर. ये जरूरी नहीं है कि अगर दो इरेशनल नंबर को सम किया जाए तो वो इरेशनल ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 2 + √3 एंड +4 - √3. 2 + √3 is also an irrational number and 4 - √3 is also an irrational number. And if we add both two numbers, +3 and -3 will cancel out. 2 and 4 is equal to 6, which is a rational number. Similarly, difference. In case of difference of two rational numbers, it is also need not be an irrational number. अगर हम टू irrational number का डिफरेंस करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उसका जो डिफरेंस आए वो इरेशनल होगा. उसका डिफरेंस रेशनल नंबर भी हो सकता है. हमने एग्जांपल दिया 5 + √3 - 3 + √3 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 5 + √3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो -√3 एंड -√2. -√2 कैंसल आउट, 5 and -3 is equal to 2. 2 is also a rational number. Similarly, in case of multiplication of two irrational numbers need not be an irrational number. ये जरूरी नहीं है कि अगर टू irrational नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो irrational ही आए, रेशनल भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल √3 and √3. √3 is an irrational number, but the product of √3 and √3, two irrational numbers, product of two irrational number is 3, which is also a rational number. And very important thing, rule 6, अगर हम किसी एक रेशनल को और एक इरेशनल को ऐड करें तो क्या होगा, और एक रेशनल और एक इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, एक रेशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, और एक रेशनल और एक इरेशनल को डिवाइड करें तो क्या होगा. ये 4 केस में सारे चीज रिजल्ट जो आएंगे वो इरेशनल ही होंगे. क्या होंगे, इरेशनल होंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे केवल सीधे लिख दिया है रेशनल नंबर एंड प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर. इट मीन्स अगर एक रेशनल नंबर है और एक
इरेशनल नंबर है। अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो एक इरेशनल नंबर होगा। सिमिलरली रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर है, उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर को सेपरेट करें या रेशनल नंबर को इरेशनल से सेपरेट करें, तो सबका जो आएगा रिजल्ट जो आएगा वो इरेशनल ही होगा। एंड आल्सो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स आर आल्सो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। अगर हम एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो भी इरेशनल नंबर होगा। एंड डिवीजन क्वाइटेंट ऑफ a rational number and an irrational number is also an irrational number. It means कि अगर हम एक रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करते हैं या एक इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हैं तो जो इसका क्वाइटेंट आएगा, जो आंसर आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। दैट्स ऑल। इतनी सारी प्रॉपर्टीज और इरेशनल नंबर को पढ़िए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 9 में आपने रेशनल नंबर पढ़ा है। अभी जो आपको ये इरेशनल नंबर चल रहा है, ये इरेशनल नंबर आपके लिए बिल्कुल अच्छी बात है और ये इरेशनल नंबर से ही आपकी पढ़ाई होती है अच्छे से। तो इसको आप एक नया टॉपिक समझ करके घर पर अच्छी तरह से पढ़िएगा। बुक में और अच्छा लोकेशन मिलेगा, लेकिन हमने जो जितना प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझा सकें, आप समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो मैं अभी यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से बच करके अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।